Welcome everyone. Thank you for joining. Sorry for the inconvenience last session. बीच में break हो गया था कुछ मैंने सुना बाहर में. So, sorry for that. And we'll start at 3 p.m. In meanwhile, just wish to announce we are coming with UGC NET series. We're calling it Mason JRF 2020, in which we're planning for systems on UGC NET Paper 1 as well as economics. So next month there will be sessions on UGC NET Paper 1 crash course. In 5 classes, we'll try to cover all the units, 10 units of UGC NET, and with that we also provide the materials which we have. So if anybody is interested, kindly let me know. And also we're coming up with UGC NET economics series, in which Salu G will be there, I'll be there. So if you're anybody of you are interested, then kindly let me know. Similarly, there will be higher version of SPSS. As it is a basic statistical analysis, we are going for advanced version of SPSS, in which there will be sessions on regression and other advanced methods. So that also is planned in August. So 2-3 courses are planned in August. If anybody is interested, kindly let me know. So that, and you can share this with your friends, fraternity, community, those you who want to join this type of courses. It will be nice. So we'll start at 3. I guess 1, 2, 3, 4. 4 members have joined, 4 participants. Yes. I guess Sri. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Saluji. Good afternoon, everyone. Welcome to this third session on basis statistical analysis using SPSS softwares. As I told, I was discussing with participants that after this series, we'll come up with advanced version. If anybody of them are interested, they should join. So I guess 4 participants have joined. Let's will join. There will be recording. So over to you. Good afternoon, sir, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Arshubala. It's raining heavily over here, so the connection is very poor. The voice is breaking. Okay. Continuously, yeah. But in Punjab, there is no rain at all. Very hot. Very heavily, yeah.
today we have to start with t-test. Today's topic is t-test. T-test. Hypothesis testing, you all know that what is hypothesis testing? Or should I continue with that कि hypothesis testing क्या होता है वो बताऊं मैं? Yes, ma'am, please. It will be a revision for us. Yeah. Okay. Actually, hypothesis testing होता है, it is testing a claim regarding the population by taking sample from that very population. कि आपने एक कोई भी क्लेम है पॉपुलेशन के रिलेटेड आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो आपने कह दिया कि लेट इट बी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फॉर द ओवर द let it be last year या over the tenure of 5 years is average per capita income की बात करते हैं is 40,000. ठीक है, average per capita income of India over the last 5 years is 40,000. तो अगर आपने ये क्लेम ले लिया तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस है. ठीक है, कि आपने कह दिया कि इसको आप म्यू से लिखते हो, म्यू 0 म्यू. This symbol mu is equal to 40,000. और ऑल्टरनेट मैंने उस दिन आपको बताई थी, वो दैट डिपेंड्स कि आपने क्या क्लेम टेस्ट करना है. इट कैन बी वन टेल और टू टेल. अगर आप क्लेम इस तरह से टेस्ट करती हो कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 40,000, कि आपकी एवरेज इनकम इतनी है, एवरेज पर कैपिटा इनकम या नहीं है, तो आपका है इज नॉट इक्वल टू, मैं ऐसे वर्डिंग की फॉर्म में लिख रही हूँ, इज नॉट इक्वल टू 40,000. और ऑल्टरनेट ये भी हो सकती है कि म्यू इज ग्रेटर देन 40,000. Okay, ma'am, that will be in one direction. One directional, and that is right tail test. Right tail test. Mu is greater than 40,000. Then next is mu is less than 40,000. Left tail test. Right? It is left tail test. That means first step in hypothesis testing is that you have to formulate null hypothesis and alternate hypothesis. Right? Null hypothesis is the claim regarding the population which is considered to be true until and unless it is proved to be wrong. Okay, ma'am. And alternate hypothesis is any claim that you have to prove. Actually, it is taken as wrong initially, and if null hypothesis is proven to be wrong, then it is accepted. Okay. Clear? Yeah, clear, ma'am. Then next step is that you have to check whether it is one tail test, one tail or two tail test. तो वो जो आपको क्लेम दिया होगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है. और जो आपका टेस्ट है वो वन टेल या टू टेल है तो उसमें भी फर्दर कैटेगराइज कर दोगे. अगर वन टेल है तो वेदर इट इज राइट टेल और लेफ्ट टेल. राइट. देन नेक्स्ट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. जो आप SIG वैल्यू से चेक करते हैं ना, मैं बताती होती हूँ कि ये 5% है या 2% या 1%. वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से टेस्ट करते हैं. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टाइप 1 एरर. Probability of occurrence of type 1 error. Now, what is type 1 error? It's the chances of null hypothesis of being wrong, ma'am. Rejecting null hypothesis. Right, very true. Rejecting null hypothesis when it is true. Right. Actually, basically, it is like suppose your null hypothesis will be either true or it will be either false.
right? And your decision will be like either it will be accepted Rejected. or rejected. If null hypothesis is true and we accept it, it is right decision. There is no problem. That means it is correct. There is no error. Similarly, if it is false and rejected, then again it is correct decision. Correct. But if it is true and we reject it, Type then there is 1 error. It is type 1 error. Type 1 error. And if it is false and we accept, then again it is Type- error. It Type is 2 error. 2 error. Now, at a time, we can control only one. Either we can control type 1 error or we can control type 2 error. And we try to control that error which is more dangerous. Now, according to you, which error is more dangerous, whether it is type 1 or type 2 error? Type 2. Why so? We are accepting a false hypothesis, a false result. Okay, false result. Okay, but isn't it also wrong that result is true and we are rejecting that? Okay, I take it like that. A person is innocent, ठीक है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, कोई गलती नहीं है उसकी, पर उसको सजा मिल जाए. और दूसरा एक पर्सन है जिसने लेट इट बी क्राइम किया है, उसने मर्डर किया है और उसको हम छोड़ दें, तो क्या ज़्यादा डेंजरस है? First one, that is, he has not done anything, but still he is punished for that. He is punished for that. So that is type 1 error. Type 1 error. It is more dangerous. More dangerous. हमारे कोर्ट के लॉज भी ऐसे बने हुए हैं कि 100 गिल्टी कैन बी रिलीज्ड बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड. Punished. ठीक है, यही लॉज है ना. तो इसका मतलब हम टाइप 1 एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और प्रोबेबिलिटी, इसकी अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड वी ट्राई टू मिनिमाइज इट एट. मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर आपका जो है ये सोशल साइंसेस की स्टडीज है तो 5% तक एक्सेप्टेंस है, 2% भी ले लेते हैं, 1% भी लेते हैं, पर 5% तक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं रिजल्ट्स को. कई बार हम उसको 10% पे भी एक्सेप्ट करते हैं जब हमें लगता है कि ये परसेप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकती है, तो हम इसको 1% पे भी 10% पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. पर मेडिकल साइंसेस में ये 0% होता है, स्पेशली जब मेडिसिन की टेस्टिंग होनी होती है, तो हम इसको 0% तक लेते हैं क्योंकि उसमें हम ये एरर नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि मेडिसिन गलत है और हमने उसको जो है लॉन्च कर दिया. Okay. जैसे अभी भी हम कर रहे हैं कोविड का, आपको पता है कि टेस्टिंग हो रही है, तो एक ट्रायल नहीं हो रहे, कितने ही ट्रायल्स हो रहे हैं, ताकि कहीं भी हम कोई भी एरर का चांस नहीं ले सकते उसमें. क्लियर? Yes. हाँ जी, इतना क्लियर हो गया? Yeah. Yes, ma'am. चलिए आगे. उसके बाद होता है कि चॉइस ऑफ टेस्ट. चॉइस ऑफ टेस्ट कि आपने टेस्ट कौन सा लगाना है, whether it should be Z टेस्ट, T टेस्ट, F टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगाना है. ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं. आपकी वेरिएबल्स मीट्रिक है, नॉन मीट्रिक है, ठीक है, किस तरह के वेरिएबल्स है, डाटा की नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है चॉइस ऑफ टेस्ट. जैसे मैंने आपको उस दिन कल करवाया था लास्ट लेक्चर में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवाया है विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर. तो मैंने उसमें बताया था कि वेरिएबल्स की नेचर क्या होनी चाहिए. It should be metric. It should be Nature should be metric. it should be non-metric. Non. Last, okay, chi-square, ma'am. chi-square. Non-metric. Non-metric. आपको याद है मैंने उसमें वेरिएबल्स लिए थे, आई थिंक एज लिया था, एक साइड पे ड्रग लिया था, एक साइड पे क्योरमेंट लेवल लिया था एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और वैल्यूज ली थी, आई थिंक एज और एक और चीज थी शायद. तो अगर इस तरह से अगर आप वैल्यूज लेते हो, तो अगर आप ये ले रहे हो, मान लो कि जैसे मैंने कहा कि ड्रग का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो येस और नो, उसमें क्या है, वो नॉन मीट्रिक वेरिएबल हो गया. और दूसरा मैंने ये चीज ली अगर कि आपका जो है
पर्सन क्योर हुआ है या नहीं हुआ है, अगेन यस एंड नो, तो ये क्या हो गया, अगेन नॉन मीट्रिक। Metric. क्लियर हुई बात? ठीक है, कि अगर आपके दोनों वेरिएबल्स नॉन मीट्रिक है और आपने उसमें एसोसिएशन निकालनी है तो आप टेस्ट अप्लाई करते हो काई स्क्वायर। Chi square. अगर आपका एक वेरिएबल जो है वो आपका मीट्रिक है और एक नॉन मीट्रिक है, ठीक है, और आपने ये निकालना है कि वेदर द डिफरेंस इन द वेरिएबल दैट इज मीट्रिक वेरिएबल दैट इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू चेंज इन नॉन मीट्रिक वेरिएबल, कि आपका नॉन मीट्रिक वेरिएबल का आंसर जब चेंज होता है, कि जैसे नॉन मीट्रिक में मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल की हमें एज दी है, तो क्या मेल और फीमेल के एज में डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर हमने ये टेस्ट करना है तो हम क्या लगाते हैं, टी टेस्ट। ठीक है, जब आपका एक वेरिएबल मीट्रिक हो और एक नॉन मीट्रिक हो तो हम लगाते हैं टी टेस्ट। ये देखिए सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। अगर आपका नॉमिनल डाटा है, नॉन मीट्रिक है, ठीक है, कैटेगरिकल वेरिएबल है, प्रेजेंट और एब्सेंट की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, तो आप या तो बार डायग्राम यूज कर सकते हो, मोड यूज कर सकते हो, या फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ऑर्डिनल डाटा है, नॉन मीट्रिक है और आपको कंपैरिजंस दिए हुए हैं ऑर्डिनल डाटा होने के कारण ग्रेटर देन या लेस देन की फॉर्म में, तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हो या फिर रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कर सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो। अगर आपका डाटा इंटरवल डाटा है, मीट्रिक डाटा है, तो उस केस में आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हो। पैरामीट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट आता है, ठीक है, और हिस्टोग्राम और मीन ये आप निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर आपका स्केल डाटा है तो भी सेम हिस्टोग्राम, मीन या फिर पैरामीट्रिक टेस्ट जो है आप इस पर लगा सकते हो। अब ये टेक्निक की सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी बाईवेरिएट सीरीज है या यूनिवेरिएट है या मल्टीवेरिएट है। अगर आपकी सीरीज यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल है, आपका एक ही वेरिएबल दिया है पूरी का पूरा, बाईवेरिएट होता है जब दो सीरीज हो, यूनिवेरिएट होता है जब सिंगल सीरीज हो। जैसे मान लो आपको दी हुई है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया या नेशनल इनकम ऑफ ब्रिक कंट्रीज या नेशनल इनकम ऑफ वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज, तो वो आपका डाटा क्या है, एक ही वेरिएबल का आ रहा है ना नेशनल इनकम का, तो ये क्या आपका यूनिवेरिएट वेरिएबल है। ठीक है, दिस इज यूनिवेरिएट की एक सिंगल सीरीज है आपकी, तो उस पर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेजर लगा सकते हो और वन सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो कि एक सैंपल की पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपकी बाईवेरिएट सीरीज है कि आपकी दो रिलेटेड सीरीज है, बाईवेरिएट डजंट मीन कि आपको एक डाटा दिया हुआ है नेशनल इनकम का और एक दे दिया वेट ऑफ स्टूडेंट्स का। बात समझ में आई है? क्लियर हुआ है? Univariate means if you are taking the gross state domestic product of two states, then it will come in the univariate. If you are taking the gross state domestic product of two states, two states for a single period, even then it is univariate. Okay. But if it is, let it be for different states over the time period, then it is panel data, but again single series is there. Single series. Univariate. Okay, ma'am. It is a panel data, but variable is only one, that is national. So it will be univariate. Univariate, definitely. Okay. Okay. Bivariate means when there are two series and that two series are related to each other. What does it mean? Suppose I have a data of national income of different states and weights of students of different states. Whether it can be termed as bivariate? Weight of students, ma'am. Weight of students or national income, अलग-अलग states की. No, it's not. Cities. But they are not two related series actually, I think. Definitely, they are not related series. Related. They are not related, so it is not bivariate. Bivariate, it will not be bivariate. Bivariate means when two are related to each other. Suppose I take, let it be age and weight of students, then that can be related. Yeah. Suppose I take national income and investments of different states,
and they Yes. can be related. They are bivariate. Clear? Multivariate is in similar kind when there are more than two series, but they are related to each other. अब अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक है और डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक है तो आप रिग्रेशन लगाते हो. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों नॉन पैरामीट्रिक हैं या नॉन मीट्रिक हैं तो आप नॉन पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाते हो, जैसे मैंने काई स्क्वायर आपको बताया. अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक और इंडिपेंडेंट नॉन मीट्रिक है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सारे लगेंगे. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एज ऑफ पर्सन्स अकॉर्डिंग टू जेंडर, कि अगर जेंडर डिफर करने के साथ साथ क्या उन पर्सन्स की एज में भी डिफर कर रही है या नहीं कर रही है. नॉन मीट्रिक टेस्ट क्या है कि डिस्क्रिमिनेट, इसमें आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मीट्रिक है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक है. इसका क्या मतलब है कि आपने ये निकालना है कि आपकी क्या जो है इनकम चेंज होने से आपकी बाइंग कैपेसिटी चेंज हो रही है. व्हाट डज इट मीन कि मान लो मैं ये कहती हूँ कि एक पर्सन घर ले सकता है या नहीं ले सकता, तो घर लेने को यस ले लेती हूँ, घर ना लेने को नो ले लेती हूँ. ठीक है, और इधर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेती हूँ कि जो घर लेना या ना लेना, दो ही चॉइसेस आए ना, तो नॉन मीट्रिक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने इनकम ली कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग क्या वो चेंज कर रहा है आपका डिसीजन नॉन मीट्रिक का या नहीं, तो वो आपका क्या है मीट्रिक वेरिएबल, क्योंकि इनकम जो है वो स्केल डाटा पे है. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक है और डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मीट्रिक है तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो आपके आज के कोर्स का पार्ट जो है वो ये है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मीट्रिक है. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने करनी है. ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो है आपका सबसे पहले जो आपने करना है वो टी टेस्ट करना है, वन सैंपल टी टेस्ट. तो हम टी टेस्ट पे जाते हैं सबसे पहले. एक मैंने आई थिंक डाउनलोड किया. देखो, वन सैंपल टी टेस्ट यूजिंग SPSS. सबसे पहले टी टेस्ट होता क्या है? टी टेस्ट बेसिकली इट इज टेस्ट यूज्ड टू डिटरमिन, if I talk about one sample t-test, then it used to determine whether there is significant difference between sample mean and population mean. या sample और population mean significantly differ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अब आपको मैंने उस दिन बताया था कि Z टेस्ट जो है वो हमारी आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. मैंने ये बात आपको बताई थी कि Z टेस्ट जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन. हम उसको कहीं भी कुछ भी उसमें हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है. जैसे कि हम ये लेके चलते हैं कि अगर हम इंडियन माइथोलॉजी की बात करें, इंडियन जो है हम रिलीजन की, हिंदू रिलीजन की बात करें, तो उसमें हम ये लेते हैं ना कि भगवान राम जो है वो सब सर्वोपर हैं, कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, आइडियल है, यही लेके चलते हैं. ठीक है, उसी तरह से Z टेस्ट जो है वो भी एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है. और हर डिस्ट्रीब्यूशन जब उसका सैंपल साइज बढ़ जाता है दैट टेंड्स टू बी Z डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो Z डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है. तो सबसे पहले जब हम टी टेस्ट करते हैं तो उसकी एक अजम्पशन जो है वो यही लेके चलते हैं कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है या जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कोई आउटलायर्स नहीं है. हम ये मान के चलते हैं कि आपका डाटा जो है वो आपका रेशियो डाटा है या इंटरवल डाटा है. अगर आपको याद होएगा तो मैंने आउटलायर्स की टेस्टिंग और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेस्टिंग आपको करवाई थी ना? Yes, yes, ma'am. किसके साथ की थी आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन?
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना? Don't remember, ma'am. टेस्ट लगवाया था एक मैंने, और हिस्टोग्राम्स बताए थे, स्टेम एंड लीफ डायग्राम बताया था, अगर आपको याद हो तो। Stem and leaf, yes, ma'am. उसमें तो और एक मैंने कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट बताए थे। all the three we were getting the outliers. We can see very clearly. इन Especially विच in the डेटा? histogram, ma'am. इन विच डेटा? Data I don't remember. Data I don't remember, ma'am. Which data you used? Okay, I told you to find that how to find out outliers. That was with the help of box plot, if you remember. बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किए थे ना, आउटलायर्स ऊपर ओ की Yes, वैल्यू yes, आ yes, गई थी, और ma'am. स्टार Yes, yes. स्टार They एक्सट्रीम were out. एक्सट्रीम वैल्यूज थी, और ओ जो है वो आउटलायर्स थे। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि डज द एवरेज, ये एक एग्जांपल्स हैं कुछ, डज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन फिल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स मैच द 12 ounces एडवर्टाइज्ड ऑन द लेबल। व्हाट डज इट मीन कि आपके जो लिक्विड फिल हुआ है बॉटल में, तो वो लिक्विड जो फिल हुआ है उसकी अलग अलग वैल्यूज होंगी, क्योंकि अलग अलग बॉटल्स हैं, तो वो आपका सैंपल हो गया। तो क्या उस वो जो है एवरेज 12 ounces के साथ मैच कर रहा है, तो ये आपका म्यू हो गया। नल हाइपोथेसिस में जो लेना है, म्यू इज इक्वल टू 12, और ऑल्टरनेट क्या आ जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 12, टू टेल टेस्ट, राइट। Yes. अगला देखिए अब, इज द मीन weight loss for men ages 50 to 60 years who are given a brochure and training describing a low carbohydrate diet more than 5 pounds after 3 months। हाँ जी, नाला प्रोसेस क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 5 पाउंड्स। 5 pounds. यही है ना एवरेज दी हुई आपको बीच में, और ऑल्टरनेट क्या आ जाएगी, इट इज मोर देन 5 पाउंड्स। तो कौन सा टेस्ट है ये, One tailed. बिल्कुल वन टेल राइट टेल टेस्ट। Similarly, in this question, based on a random sample of 200 students, can we conclude that average SAT score this year is more than 400? Mu is equal to, 400 right, and alternate mu is, is more than 400. right, more than 400. That means it is again question of Single right tail right-tailed. test, right? Now, Right. how to perform it with the help of SPSS? डेटा फाइल खोलनी याद है, डेटा फाइल खोलनी याद है जी, Yes, ma'am. डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आपका डाटा पड़ा है, तो अगर एसएडी है तो यहाँ से एक्सटेंशन चेंज नहीं करनी है, अदरवाइज आपने एक्सटेंशन चेंज करनी है, ठीक है। ये देखिए, सपोज ये आपको डाटा दिया हुआ कैट स्कोर्स का, सेल्स का, एवरेज माइलेज का, ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है डाटा, और सारे के सारे डाटा देखो स्केल डाटा है। मैंने ये कंडीशन बताई ना आपको कि स्केल डाटा होना चाहिए, ठीक है, और न्यूमेरिक है, ठीक है। अब मैं एक जो है ये डाटा व्यू आपको दिया हुआ है, ये वैल्यूज है सारी, ठीक है, 60 ऑब्जर्वेशंस पे ये डाटा दिया हुआ है आपको।
अब आपने लगा ये सबसे पहले सेल्स पे करते हैं. We have to find out whether average sales of company are more than 40 or more than 40. अब आप मुझे बताइए null hypothesis क्या बनेगी? Null hypothesis क्या बनेगी? mu is equal to 40. Right. Mu is equal to 40. और alternate क्या बनेगी? Mu It's is greater not than बिल्कुल सही है. Mu is greater than 40. और कौन सा टेस्ट है? 40. One paired, right Mu tailed. is greater than 40. One tailed test. One tail test, right? Clear? clear, ma'am. This one. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो एसपीएसएस पे कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जैसे हम एनालाइज पे जाते हैं वैसे ही एनालाइज पे कंपेयर मीन्स में जाके वन सैंपल टी टेस्ट. ठीक है, तो ये सेल्स पे मैंने लगाना है तो इसको इधर लेके Test और टेस्ट वैल्यू क्या ली है मैंने 40, 40. तो यहाँ 40 ले लिया और ऑप्शंस में जाके आपने एज सच रहने देना एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय एनालिसिस और ओके पे क्लिक करना. क्लियर? हाँ जी ठीक है जी. अब देखो रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं. एवरेज सेल्स ऑफ 60 कंपनीज इज 47.97 विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 29.957. ठीक है, एंड स्टैंडर्ड एरर इज 3.867. स्टैंडर्ड एरर पता क्या होता है? Standard deviation of sampling distribution. Very good. And what is sampling distribution? Srija answered. Yes. What is sampling distribution? Sampling distribution. The sample we used. Sample we choose, let it be, it is a sample of 60 persons. Then is this the sampling distribution? Ma'am, it is nothing but the probability distribution of the sample, given sample. देखो अगर मान लो आपकी पॉपुलेशन लेट इट बी 1000 की है तो आपने 60 के साइज का सैंपल उसमें से विड्रॉ कर रहे हो, तो जितने 60 साइज के कई तरह के कॉम्बिनेशन परमुटेशन बन जाते हैं ना. ठीक है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकती है. तो वो कोई भी मेथड ऑप्ट करके जो आपने जितने आपके सैंपल्स विड्रॉ हो गए तो सैंपल्स को अगर आपका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकाल लेते हो, सॉरी उन सैंपल्स के मीन का, जैसे पहले एक 60 के सैंपल का मीन आया 47.97, अगले 60 के सैंपल का लेट इट बी मीन आ गया 48, उससे अगले का आ गया लेट इट बी 46, फिर 49, 50 सोन वेरी कर रहे हैं ना. वो अलग अलग जो मीन्स आए उनकी अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दोगे, वेरिएबिलिटी निकाल दोगे, तो वो क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. ठीक है, और जब हम टी टेस्ट लगाते हैं वन सैंपल टेस्ट में तो फॉर्मूला यही होता है मीन, मतलब ये मीन आपका माइनस म्यू मतलब 40 जो आपने लिया है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, इसका मतलब 47.97 माइनस 40 डिवाइड बाय 3.867, तो ये आपका नियर अबाउट 2 समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग. तो वो देखो वही टी आ गई वैल्यू 2.0. आप सॉल्व करके देख लो. 47.97 minus 40 divided by this 3.867. This will be somewhat 2.060. And degrees of freedom are number of values minus 1, that is 60. Clear? 59. Clear? You have to take this part for hypothesis testing. T-test, then degree of freedom, then this SIG value. 0.04.
0.044। अब मैंने आपको बताया हुआ है डिसीजन रूल, पर वो डिसीजन रूल जो बताया है वो यहाँ पे सीधा अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट वैल्यू दी है आपको टू टेल के लिए, और आपका जो टेस्ट, ये देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बनी है वो ये बनी है राइट टेल सिंगल टेल के लिए। तो सिंगल टेल की हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए आप टू टेल की एसआईजी वैल्यू तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब डिसीजन रूल क्या होते हैं कि अगर आपका लेफ्ट टेल टेस्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट है और टी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, ठीक है, राइट डाउन इट, इफ इट इज अ लेफ्ट टेल टेस्ट एंड टी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई है, देन यू विल ऑलवेज एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर आपकी जो टेस्ट है वो राइट टेल है और टी की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, देन यू विल ऑलवेज एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और अगर आपका जैसे राइट टेल है और टी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, देन यू विल सी दिस सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिग्निफिकेंट वैल्यू की जो भी आपका आंसर आया हुआ है यहाँ पे उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। वन टेल है ना, तो वन टेल में इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ गया आपका 0.022। सिंस इट इज लेस देन 0.05, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस में भी, नल हाइपोथेसिस में भी आप बोलोगे आगे सेंटेंस आपने कंप्लीट करना है। Ma'am, please. Rejected. 1 second. 1 second. Right. Right tailed. T positive. Then. Yes, ma'am. नल हाइपोथेसिस में भी रिजेक्टेड, Rejected. राइट, इट इज रिजेक्टेड। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया। तो रिजेक्टेड का क्या मतलब है यहाँ पे? That H1 is accepted. Mu is greater than 40. 40. It is sales of 60 companies are greater than 40. 40. Clear? हाँ जी, इतना क्लियर है। वन सैंपल टी टेस्ट क्लियर हो गया? Yes, या ma'am. किसी और पे अप्लाई एक और करके दिखा दूं? मैम हाँ, क्या समझ में वो समझ आ गया है? आगे चलें फिर? हाँ मैम। ओके। Next, we have to continue with T-pair test. T-pair test. देखो, टी जो टू सैंपल टेस्ट है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और एक होता है टी पेयर टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिपेंडेंट टी चलो बता देती हूँ। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है? इसको नॉन पेयर टेस्ट भी बोलते हैं। देखो डिफरेंस क्या है नॉन पेयर्ड और पेयर्ड में। जब आपकी दो सैंपल सीरीज जो हैं, दो वैल्यूज जो दी हुई हैं वो रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम कहते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अगर दो वैल्यूज आपस में रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टू सैंपल इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या नॉन पेयर्ड टी टेस्ट। जैसे एग्जांपल लें तो ये इस तरह से ले लेते हैं कि मान लो आपके जो है 10 स्टेट्स इंडिया का डाटा दिया हुआ है आउटपुट का, ठीक है, और 10 स्टेट्स यूएस का डाटा दिया हुआ है आउटपुट का। तो वो दोनों कहीं भी रिलेशन नहीं है आपस में। इंडिया अलग कंट्री है, यूएस अलग कंट्री है, उनकी स्टेट्स अलग अलग होंगी, तो वो क्या है आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। पर अगर मान लो पॉपुलेशन रिलेटेड है, आपके सैंपल्स रिलेटेड है, जैसे लेट इट बी हमने इस तरह से लिया कि एक आपका जो है टेस्ट आपको दिया हुआ है वैल्यूज, मान लो लेट इट बी इंडिया की नेशनल इनकम की बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और एक हमने ईयर ले लिया आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो वो आपका क्या हो गया? पेयर टेस्ट। पेयर टेस्ट। सेम स्टेट्स, उनकी बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वैल्यूज ली और आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वैल्यू ली, तो ये क्या हो गया आपका पेयर्ड टेस्ट। टी टेस्ट। ठीक है, समझ आई ये बात?
इसको और yes, एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आप इस तरह से ले सकते हो कि मान लो आपको एक डाटा दिया हुआ है नेशनल इनकम, चलो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, और कि मान लो आप ऑलमोस्ट सभी टीचर्स हो कि आपको जो है डाटा दिया हुआ है, लेट इट बी सेटिस्फेक्शन लेवल का, ठीक है, इंटरवल डाटा है, इंटरवल डाटा पे अप्लाई हो जाता है ये सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ टीचर्स, ठीक है, ड्यूरिंग लेट इट बी दिस कोविड-19 पेंडेमिक टाइम, ठीक है, ऑफ दिल्ली एंड ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये क्या है? Independent. इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, क्योंकि दिल्ली के टीचर्स अलग हैं और पंजाब के अलग हैं, कहीं रिलेशन नहीं है उनमें, ठीक है। अगर आपको ये दिया हो कि सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ टीचर्स ऑफ पंजाब बिफोर कोविड-19 एंड आफ्टर कोविड-19, तो ये क्या है? पेड हो जाएगा। पेयर, Paired. क्योंकि रिलेटेड है। समझ आ गई बात? क्लियर है मुझे लग रहा है ये चीज। यस, हाँ जी, क्लियर है ना? देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो a researcher wants to know whether one fertilizer brand 1 causes plants to grow faster than another brand of fertilizer brand 2. Starting with seeds, he grows plants in identical conditions and randomly assigns fertilizers brand 1 to 7 plants and fertilizer brand 2 to 6 plants. The data for the experiment are as follows, where the outcome measurement is the height of plant after 3 weeks of growth. Data are shown in table 3.3. तो ये आपका डाटा दिया हुआ है। तो फर्टिलाइजर 1, अच्छा एक और चीज़ है, ये देखो, जब आपका ये फर्टिलाइजर 1 का डाटा है, ये फर्टिलाइजर 2 का डाटा है, जब आपको नंबर सीधा ही डिफरेंट दिया ना, तो वो नॉन पेयर्ड ही है, इंडिपेंडेंट ही है, वो आपका रिलेटेड हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। बात समझ में आई? मैम ये रिलेटेड नहीं है बिकॉज नहीं वो है। अलग प्लांट्स में अप्लाई हो रहा है, ये अदर प्लांट्स में अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं दूसरी चीज आपको ये बता रही हूँ कि हाँ, जब वही नहीं आपका समझ आई। नंबर डिफर कर रहा है, फर्टिलाइजर में देखो Okay, कितनी okay. ऑब्जर्वेशन है, 7, इसमें 6, ओके तो वो ओके, कभी भी पेयर नहीं हो सकता, कहीं कंफ्यूजन ही नहीं है। गॉट इट। पेयर्ड क्योंकि सेम ऑब्जर्वेशंस, जो सेम सैंपल की ऑब्जर्वेशंस दोबारा लेनी है तो वो हमेशा सेम होगी, ठीक है, रिलेटेड होगी। समझ आई बात? ठीक है। अब SPSS पे जब हम अप्लाई करते हैं इसको, तो इसको अप्लाई करने के लिए हमने 2 ही लेने हैं वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स इसमें कैसे लेंगे? देखो ये आपको दी हुई है, आउटपुट दी हुई है, ठीक है, आउटपुट दी है ना ये आउटकम, और दूसरा आपको दिया फर्टिलाइजर। तो अब 2 वेरिएबल्स लोगे, एक आउटकम का लोगे, एक फर्टिलाइजर का लोगे, ठीक है। आप ये नहीं लोगे कि फर्टिलाइजर 1 फर्टिलाइजर 2, आप एक वेरिएबल आउटकम का लोगे और दूसरा आप लोगे फर्टिलाइजर का, इस तरह से। वेरिएबल व्यू में चले गए और एक हमने वेरिएबल ले लिया आउटकम, न्यूमेरिक है, दूसरा हमने वेरिएबल ले लिया फर्टिलाइजर, अगेन इट इज न्यूमेरिक, ठीक है। ये आपका राइट अलाइंड है और ये आपका स्केल डाटा पे है। फर्टिलाइजर जो है आपका वो नॉमिनल डाटा पे है और इसकी वैल्यूज आपने डिफाइन कर दी। एक ले लिया आपने वैल्यू 1 फॉर फर्टिलाइजर 1 एंड वैल्यू 2 Fertilizer 2. ठीक है, नॉन मीट्रिक डेटा। यही मैंने कंडीशन बताई थी ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, यही कंडीशन बताइए ना कि आपने इस तरह से लेना है कि एक आपका नॉन मीट्रिक हो और एक मीट्रिक हो। डिपेंडेंट वेरिएबल आउटकम है यहाँ पे, वो मीट्रिक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे फर्टिलाइजर है और वो नॉन मीट्रिक है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर? हाँ मैम। उसके बाद हम डाटा व्यू में जाएंगे। डाटा व्यू में जाके आउटकम और फर्टिलाइजर्स की वैल्यूज फिल करेंगे। जैसे ये देखो, ये आपकी पीपीटी में वैल्यूज थी। फर्टिलाइजर 1 की वैल्यूज क्या थी?
51, 53.3, 51, 53.3. Then next क्या है values? 55.6, 51, 55.6, 51, then 55.5, 53 and 52.1. 55.5, 53 and 52.1. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज क्या है? 54, 56.1, 54, 52.1, 56.1, 52.1, 52.1, 56.4, 56.4. 54, Any other values there? 54, 54 and 52.9. 52.9. 54 and 52.9. And you have, how will you substitute values in this fertilizer? This is from 1, first fertilizer 1. up to this, right? ये अगली वैल्यू ये 2 से स्टार्ट Two. हुई, ऐसे ही है ना? Okay. ठीक है, अब आप एनालाइज में जाएंगे. कंपेयर मीन्स Independent. सैंपल टी टेस्ट. टेस्ट वेरिएबल क्या है? आउटकम. ग्रुपिंग वेरिएबल क्या है? Fertilizer. ठीक है, और ऑप्शंस आपने एज सच रहने देनी है, एक्सक्लूड केसेस. और डिफाइन ग्रुप में आपने ग्रुप 1 में 1, ग्रुप 2 में 2, 2. कंटिन्यू. ठीक है, 1 और 2 डिफाइन किया ना. ओके, देखिए आपके रिजल्ट्स क्या है. रिजल्ट्स आ गए कि आउटकम ऑफ फर्टिलाइजर 1, ठीक है, फॉर 7 फील्ड्स या 7 प्लॉट्स जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, इज 53.07 with standard deviation of 1.91 and standard error of 0.72. Average outcome of 6 plots where fertilizer 2 is applied is 54.25 with standard deviation 1.71 and standard error of mean 0.70. Right? हाँ, जितना क्लियर हो गया? जी. Okay. चले आगे. अब देखिए आगे क्या है. ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का टेबल है. एक मिनट, ये वाला. ओके, इसमें आप ये देखिए 2 बने हुए ना, इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड और इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड. देख रहे हैं आप 2 वैल्यूज? जी. सबसे पहले इसका मतलब हमने टेस्टिंग करनी है कि क्या हमारी वेरिएंस इक्वल है या नहीं. अगर आपकी वेरिएंस इक्वल है तो आप पहली रो में वैल्यूज देखोगे. अगर आपकी वेरिएंस इक्वल नहीं है तो आप दूसरी रो में वैल्यूज देखोगे. तो सबसे पहले हम कैसे टेस्ट करेंगे? एफ वैल्यू इज 0.075 एंड SIG वैल्यू इज 0.790. राइट? Yes. Now this 0.790, it is greater than 0.05. Yes. Since significant value is greater than 0.05, therefore null hypothesis may be Accepted. accepted. That means variances are equal. Equal. ठीक है, तो हम पहली रो में देखेंगे. जब पहली रो में देख रहे हैं तो टी वैल्यू कितनी आ गई? टी वैल्यू इज, सबसे पहले देखो हाइपोथेसिस क्या बननी है. क्वेश्चन देखो अब क्या है. क्वेश्चन है आपको इसमें क्वेश्चन में अब दिया नहीं, लेट इट बी, मैं क्लेम दे देती हूँ. वेदर यू हैव टू टेस्ट, हाँ नहीं दिया है. ए रिसर्चर वांट्स टू नो whether one fertilizer causes plants to grow faster than another brand of fertilizer. इसका मतलब null hypothesis आपकी आ गई कि mu1 is equal to mu2. Mu2. ठीक है, null hypothesis बन गई
mu1 इज इक्वल टू mu2 U2. और ऑल्टरनेट क्या बन जाएगी? mu1 is not equal to mu2. नहीं, ये Less देखो than. स्टेटमेंट पढ़ो क्या है. वेदर वन फर्टिलाइजर दैट इज ब्रांड फर्टिलाइजर ऑन ब्रांड 1, ठीक है, ब्रांड 1 ये वाला, ठीक है, कॉजेज प्लांट्स टू ग्रो फास्टर देन Okay. अनदर ब्रांड ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है. Land 2. इसका मतलब ये टेस्ट करना चाह रहा है कि ये जो फर्टिलाइजर 1 की आउटकम है इट इज मोर देन फर्टिलाइजर More than 2 की आउटकम. second. तो हाँ, मोर देन mu1 mu1 इज More than. is greater than mu1 इज greater ग्रेटर than देन mu2. mu2. ये आपकी ऑल्टरनेट आ जाएगी, ठीक है. ऑल्टरनेट इज mu1 इज ग्रेटर देन Greater than. mu2. क्लियर? ठीक है. अब बताओ, अब इसमें टेस्ट करो जो आपका आउटपुट आई है. अब मुझे बताओ इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू को कैसे टेस्ट करेंगे. अब ये आपका कौन सा आ गया? अगेन राइट टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट. तो सिग्निफिकेंट वैल्यू को क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 2. 2. तो अब अगर डिवाइडेड बाय 2 करते तो वैल्यू क्या आ रही है? क्या वैल्यू आ रही है? 0.269 डिवाइडेड बाय 2.1345. इतनी वैल्यू बनेगी ना? Yes, ma'am. ठीक है. अब 0.1345 इट इज ग्रेटर देन 0.05. Less than. 0.1345 is greater than 0.05. 0.05. बड़ी है ना? Yeah, बढ़िया. हाँ, अगर बड़ी आए तो क्या करते हैं हम? नल हाइपोथेसिस Rejected. ना क्या करते हो आप? हर जगह रिजेक्ट कर देते हो. Except इफ न्यू हम कह रहे थे सिग्निफिकेंट वैल्यू इज लेस देन 0.05 तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई. और यहाँ पे ऑपोजिट है कि इट इज ग्रेटर देन Greater than. 0.05 तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? accepted. Accepted. हो जाएगी. एक्सेप्टेड. और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करें तो क्या आ जाएगा आपका क्लेम? ये कि mu1 इज इक्वल टू mu2. इसका मतलब क्या बना? ये क्वेश्चन क्या रिजल्ट लिखेंगे हम कि Fertilizer 1 and 2. There outcomes of fertilizer 1 One are is equal to outcomes of fertilizer 2. Fertilizer 2. That is, one fertilizer brand 1 does not cause plants to grow faster than another brand of fertilizers. Fertilizer. fertilizer. Clear? Yes. हाँ जी, क्लियर हो गया इतना? जी. ठीक है. Yes, ma'am. अब देखो एक और मैं आपको इस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है जेंडर का, इनकम का. ये वेरिएबल व्यू में जाते हैं. इनकम आपकी स्केल डाटा है और जेंडर आपका नॉमिनल डाटा है. ऐसे दिया हुआ है ना? ठीक है. आई हैव टू फाइंड आउट whether there is significant difference in income of male and female. ठीक है. whether the income differs according to change in gender. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है? नल हाइपोथेसिस अगेन वही बन जाएगी, mu1 इज इक्वल टू mu2 और ऑल्टरनेट क्या बन जाएगी? mu1 इज नॉट इक्वल टू mu2. Not equal to mu2. ठीक है. तो mu1 इज इक्वल टू mu2 का मतलब ये है कि आउटकम या इनकम दैट डज नॉट डिफर अकॉर्डिंग टू जेंडर. Gender. और ऑल्टरनेट आ जाएगी इनकम सिग्निफिकेंटली डिफर्स अकॉर्डिंग टू जेंडर. Gender. ठीक है. और नल हाइपोथेसिस हो गई कि देयर इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इनकम ड्यू टू चेंज इन जेंडर. और ऑल्टरनेट आ गई देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन जेंडर. क्लियर होगी बात? हाँ जी, क्लियर है इतना? जी. Clear, ma'am. अब आपने क्या करना है? कंपेयर मींस इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट. यहाँ पे आपकी मंथली इनकम टेस्ट वेरिएबल ग्रुपिंग में क्या जाएगा? Gender. Gender. और डिफाइन कैसे करना है ग्रुप्स को? देखो 2. ये दी हुई है वैल्यूज 1 और 1 and 2. यहाँ पे अगर 0 और 1 होती तो हम 0 और 1 लिखते हैं यहाँ पे. जी. जो आपको वैल्यूज आपने डिफाइन की है. कंटिन्यू. ओके. Okay. अब आप बताओ मुझे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं. आपने सिर्फ ये बताना है कि आपका जो है इनकम में डिफर कर रही है जेंडर के साथ के नहीं कर रही है. कौन सी रो में देखोगे? पहले वाली या दूसरे वाली?
पहले वाली रो में देखेंगे मैम पहले, क्यों? क्योंकि Why in इक्वल first row? वेरिएंस एज्यूम करके वो वाला रो देख, इक्वल कैसे पता चला आपको कि इक्वल है? इसको सिग्निफिकेंस वैल्यू को फिर 2 से डिवाइड करके। नहीं, 2 से डिवाइड नहीं करना, ये टू टेल टेस्ट ही है, एज सच देखनी है ये वाली, ओके एज सच देखनी है। 2 से डिवाइड तब करते हैं जब 1 टेल टेस्ट होता है, ओके ओके ठीक है? ये वैल्यू, पहले वाली वैल्यू आपने एज सच ही देखनी है। जी सिंस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन पॉइंट, 0.05 0.05. आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। और नल हाइपोथेसिस क्या है? there is no gender difference in weights. ये वाली जो आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, ये एफ की है, इसकी है। Okay. एफ टेस्ट किस लिए यूज करते हैं? वेरिएंस के कंपैरिजन के लिए। Okay, ma'am. इसकी नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेरिएंस ऑफ 2 सैंपल्स, ठीक है? तो इसका मतलब इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब इक्वल वेरिएंस आ गया, इसलिए आप पहली रूल देखोगे। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है? अब मतलब मैडम अब मतलब ये जेंडर डिफरेंस नहीं है वेज का, वही नहीं, अभी ये है कि वेरिएंस इक्वल है। जेंडर Okay. डिफरेंस है या नहीं वो कहाँ से पता चलेगा? कि टी टेस्ट से। ओके ओके टी की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये SIG वैल्यू। ओके टी की वैल्यू है -0.101, SIG वैल्यू है 0.920, अगेन ग्रेटर देन 0.05। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। यहाँ से पता चल रहा है कि आपका इनकम का डिफरेंस नहीं है जेंडर के कारण। ओके इससे नहीं पता चला था? जी जी समझ आई बात? क्लियर हो गया? जी Clear, ma'am. ठीक है? हाँ मैम। ये जैसे ये अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं, लेट इट बी। मंथली इनकम की जगह परफॉर्मेंस ले लेते हैं। अब देखिए, परफॉर्मेंस डिफर कर रही है अकॉर्डिंग टू जेंडर। 0.956 इक्वल वेरिएंस होगी, इसका मतलब पहली रो में टी देखेंगे, और ये 0.843 अगेन नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होगी, ठीक है ना? तो आपकी जो है, इसका मतलब परफॉर्मेंस भी डिफर नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू जेंडर। हाँ जी, क्लियर हो गया? जी जी Yes, ma'am. अब जितने भी केसेस अभी तक मैंने करवाए हैं उसमें आपको जो मीट्रिक वेरिएबल है वो आपको दिया होता है कि ये नॉन मीट्रिक है, और जेंडर उसकी एंट्री जो है वो नॉन मीट्रिक की फॉर्म में हुई है। ऐसे किया ना हमने, जैसे ये क्वेश्चन किया तो इसमें हमने ये नॉन मीट्रिक फॉर्म में ले लिया 1 और 2। अगर हमने ये क्वेश्चन लिया तो जेंडर 1 और 2 की फॉर्म में लिया हुआ था, ऐसे ही था ना? पर अगर लेट इट बी कैटेगरीज बनाई ना हो, आपको एक्चुअल डाटा दे दिया, लेट इट बी जैसे ये एज दिया हुआ है, ठीक है? जैसे एज दिया हुआ है, और मैं आपको कह दूं कि आपने जो है ये टी टेस्ट लगाना है, और आपने ये चेक करना है क्या इनकम जो है एज ग्रुप 40 से कम वालों की और 40 से ज़्यादा वालों की डिफर कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है? वेदर द एज ऑफ persons with whether the income of the persons with age group less than 40 is significantly different from the income of persons with age group more than 40, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, आपको ये नहीं करने की जरूरत कि आप 40 के से लेस वाली वैल्यूज को सबको 1 लिखो, और 40 से ज्यादा वाली वैल्यूज को सबको 2 लिखो। आपने क्या करना है, एनालाइज, कंपेयर मीन्स, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यहाँ पे आपने लेके गए मंथली इनकम, और यहाँ पे आप लेके गए ग्रुपिंग वेरिएबल में एज, ठीक है? अगर आप मैनुअली करोगे फिर आपको करना पड़ेगा सॉल्व। यहाँ पे आप करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा कट पॉइंट लिखना है और कट पॉइंट पे 40 कर देना है, वो अपने आप 2 कैटेगरीज बना देगा इस बेसिस, ठीक है? कंटिन्यू किया, ओके कर दिया, ये देखो 2 कैटेगरीज बन गई। पहली बन गई मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय विद एज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, दूसरी बन गई मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय विद एज लेस देन 40।
monthly income of employees with age greater than equal to 40 for 22 employees is 56,272.73 with standard deviation of 24,598 and standard error of 5244.326. And monthly income of employees with age less than equal to 40 for 28 persons is 41,071.43 with standard deviation of 17,981 and standard error of 33,398. राइट? ओके हाँ जी, क्लियर हो गया इतना? जी मैम। अब मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉयज जो है चेक करने के लिए कि क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफर करती है अकॉर्डिंग टू एज या नहीं, तो हमें ये देखना है कि कौन सा टी लें, ये वाला या ये वाला। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इक्वल वेरिएंस है या नहीं है। तो इस SIG वैल्यू से चेक करना होता है। SIG वैल्यू ये वाली लेनी है, तो क्या ये आपकी 0.05 से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है? मैम छोटी है। Small. छोटी है। Small. तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब आपका ये एक्सेप्ट हो गया नहीं है। हाँ हाँ नहीं है इक्वल वेरिएंस, ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्ट हो गया। तो अब आपने टी टेस्ट कौन सा लेना है, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। टी वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.433 for 37.23 degrees of freedom and significant value comes out to be 0.020 since it is less than 0.05, therefore null hypothesis may be rejected। और null hypothesis reject होने का क्या मतलब है, आपकी मंथली इनकम जो है हाँ वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है। Monthly income of employees of age group greater than equal to 40 is significantly different from monthly income of employee with age less than 40। क्लियर होगी बात? मैम एज को फिर हम लोग 2-3 बना नहीं सकते हैं ना कि 35 to 40, 42 ऐसे कट पॉइंट नहीं, कट पॉइंट एक है ना, जब वो कर सकते हो अगर आपने कैटेगरीज करनी है, पर वहाँ टी टेस्ट नहीं अप्लाई होगा ना। टी टेस्ट सिर्फ 2 सैंपल्स पे अप्लाई, मतलब 2 कैटेगरीज होती है तभी अप्लाई होता है जी। वहाँ पे जो है हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है अनोवा अप्लाई होता है, ओके ठीक है। उसमें जो है कैटेगरीज ज्यादा है जो वेरिएबल की है, ठीक समझ में आई बात? वहाँ पे अनोवा अप्लाई होगा जो हमने अगली बार करना है, है ठीक है। चलें आगे, जी मैम। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? अगर जी। कोई डाउट है यहाँ तक, कहीं कुछ नहीं समझ में आया, वो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है यहाँ तक अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ठीक है मैम, क्लियर है एक्चुअली। क्लियर है? देखिए हाँ, अब ये जो है आपके, ये तो वही स्टेप्स हैं जो मैंने पहले आपको बता दिए हैं। उसके बाद आ जाओ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जो है वो आपको मैंने बता दिया कि जब 2 आपके वेरिएबल्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है 1 सैंपल की जो है दैट कैन बी पेयर्ड विद ऑब्जर्वेशन इन अदर सैंपल। जैसे मैंने आपको बताया था सेल्स बिफोर एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स आफ्टर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। जैसे पेयर्ड टी टेस्ट जो है इट इज अप्रोप्रिएट फॉर डाटा इन विच 2 सैंपल्स आर पेयर्ड। जैसे मान लो पेयर्स बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, और या फिर 2 जो है आपके सेम ऑब्जेक्ट पे, जैसे लेफ्ट आई पे आपकी विजन कितनी आ रही है, राइट आई पे कितनी विजन आ रही है, तो सेम ऑब्जेक्ट की 2 मेजरमेंट्स लिए ना, तो वो भी आपका पेयर्ड है, ठीक है। तो डज द डाइट वर्क्स, ठीक है, वो आपकी पेयर्ड होगी कि डाइट 1 दी है, आपकी डाइट 2 दी है, और उसमें मैंने आपकी जो है वेट का डिफरेंस देख लिया, क्या डिफर कर रहा है या नहीं कर रहा। टीचिंग मेथड चेंज किया तो बच्चों के स्कोर्स का डिफरेंस देखा। फिर उसके बाद मान लो एक नई आई ड्रॉप मैंने यूज़ की है, तो क्या नई आई ड्रॉप यूज़ करने से क्या मेरा जो है बेटर वर्क कर रही है वो आई ड्रॉप या नहीं कर रही है, ठीक है। ये सारा जो है आपका पेयर टी टेस्ट के एग्जांपल्स हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है कि आपकी μ1 इज इक्वल टू μ2, और ऑल्टरनेट क्या आ जाएगी, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, और ऑल्टरनेट आ जाती है μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आ गया इतना? हाँ, जितना क्लियर है? जी मैम। अब इसमें जो SPSS पे एंट्री होती है उसमें हम इस तरह से एंटर करते हैं डाटा कि डाटा व्यू में आफ्टर एंटरिंग वेरिएबल्स इन वेरिएबल व्यू, कि हम वेरिएबल व्यू में वेरिएबल्स को एंटर कर देंगे और फिर उसके बाद डाटा में जाके डाटा की एंट्री कर देंगे। तो इसमें 2 वेरिएबल्स एंटर करेंगे, सेल्स बिफोर एडवर्टीजमेंट
और सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। Advertisement. इसमें वैसा नहीं चलता है कि सेल्स और नॉन मीट्रिक वेरिएबल वाली एंट्री नहीं होती है, क्योंकि पेयर्ड है ना, दोनों सेम एंट्रीज, सेल्स बिफोर एडवर्टाइजमेंट और सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। फिर टी टेस्ट में जाके हम अप्लाई कर देते हैं टी टेस्ट, और रिजल्ट्स जो है आउटकम को हम कंपेयर कर लेते हैं। हाँ जी, अब इसको कैसे करेंगे? अब वेरिएबल व्यू में जाके दो वेरिएबल्स थे वहाँ पे, एक था सेल्स बिफोर एडवर्टाइजमेंट और एक था सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। राइट, ये भी आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है। इसका आप दोगे सेल्स बिफोर एडवर्टाइजमेंट, और इसको हम देंगे सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। ठीक हो गया? और ये दोनों ही आपके स्केल वेरिएबल्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही सेल्स हैं। समझ आई बात? कि डाटा व्यू में जाके अब डाटा की एंट्री कर दोगे। मान लो ये आपकी जो है पहले की सेल्स हैं, आपको 20 कंपनीज का डाटा दिया हुआ है। ठीक हो गया? और ये सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। मैंने ये हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है whether the advertisement is effective or not. ठीक है, whether the advertisement is effective or not. ठीक है, ये आपको डाटा दिया होगा, तो आपने लगाना है कि क्या आपकी जो है सेल्स बिफोर एडवर्टाइजमेंट और आफ्टर एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। एनालाइज, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट क्या बनेगी? नल हाइपोथेसिस आपकी बन जाएगी There is no significant difference between हाँ जी, sales before advertisement and after advertisement. right, there is insignificant difference between sales before advertisement and after advertisement. Alternate क्या बनेगी? There is significant difference between There is significant difference between इसमें मैंने आपको कहा नहीं, मैंने आपको स्टेटमेंट क्या दिया उसके अकॉर्डिंगली हाइपोथेसिस मैंने स्टेटमेंट दी कि वेदर द एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव और नॉट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव कब होगी? अगर सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, will be greater than the sale before the advertisement. है ना? तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सेल्स बिफोर एडवर्टाइजमेंट आर लेस देन after advertisement.
सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। जी ठीक हो गया? जी हाँ जी, इतना समझ में आ गया? जी सेल्स बिफोर एडवर्टाइजमेंट आर लेस देन सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गया? हम्म, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव, एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है इतना? अब जी बताओ ये कौन सा टेस्ट है? वन टेल्ड वन टेल टेस्ट है ये, कौन सा? राइट राइट कैसे टेल कैसे? राइट, लेफ्ट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट 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 लेस देन, लेफ्ट वन ठीक है, टेल। लेफ्ट है, बिल्कुल सही, लेफ्ट है। हाँ जी, अब आउटपुट की फाइल, ये आपके रिजल्ट्स हमने लगा लिया था ना टेस्ट। ये टेस्ट अभी नहीं लगाया पेयर का, नहीं सिखाया अभी आपको कैसे लगाना। ये देखिए, ये आपकी एंट्रीज हैं। एनालाइज, एनालाइज पे जाके कंपेयर मीन्स पे जाके पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। जब हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कर रहे हैं तो सेल्स बिफोर एडवर्टीजमेंट एक जगह पे और एक जगह पे सेल्स आफ्टर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सेल्स बिफोर एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स आफ्टर एडवर्टीजमेंट। क्लियर? और ऑप्शंस में आपने वैसे ही एक्सक्लूड केसेस, ये आपके रिजल्ट्स आ गए कि सेल्स बिफोर एडवर्टीजमेंट कितनी है। एवरेज सेल्स बिफोर एडवर्टीजमेंट फॉर 20 कंपनीज इज 65.7 with standard deviation 16.7 and standard error 3.7 and sales after advertisement are 80.55 for 20 companies with standard deviation of 14.09 and standard error of 3.15. 1.5 ठीक है, and correlation between sales before advertisement and sales after advertisement are 0.609 and it is highly significant. That means two samples are correlated to each other. समझ आई बात? जी सिग्निफिकेंट है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कोरिलेशन हमने की है कि दे आर हाईली कोरिलेटेड टू ईच अदर। अब ये आपकी मीन डिफरेंस आ गया -14.8 इन दोनों का डिफरेंस। ओके ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई, जो डिफरेंस आया ना मीन का, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड एरर आ गई कि अगर आप सारी वैल्यूज को इस तरह से निकाल लो, ये आपका जो डाटा है x1 माइनस x2 करके सारी वैल्यूज निकाल लें, एक नया वेरिएबल बन जाएगा ना। जी ठीक है, तो वो आपका जो है वैल्यूज, वैल्यू हाँ समझ आई बात? जी मैम ठीक है, अब जो आपकी आउटपुट आई वो इस तरह से आ गई कि आपका जो है टी टेस्ट आ गया -4.77 विद सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.000 फॉर 19 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसमें जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 से निकलती है, ये 20-1। वन सैंपल में भी n-1 से, जो 2 सैंपल होता है उसमें दोनों सैंपल्स की वैल्यूज को ऐड करके -2 कर देते हैं। ओके ठीक है, क्योंकि 2 सैंपल्स अलग अलग होते हैं, इसमें सेम पेयर है तो हमने एक ही n लेना है और -1 नहीं करना है। Since significant value is less than 0.05, therefore null hypothesis may be rejected and alternate may be accepted. And what is alternate hypothesis? That advertisement advertisement is is effective. effective. That means advertisement has promoted the sales. Clear? हाँ जी, इतना समझ में आ गया? जी मैम यहाँ तक अगर पहले कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ लो, कोई अगर डाउट है यहाँ तक तो वो पूछ लो। ठीक है मैम क्लियर है? जी एनालाइज, कंपेयर मींस पेयर सैंपल टी Paired टेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके आपने सेल्स बिफोर एडवर्टीजमेंट और आफ्टर एडवर्टीजमेंट देख के सॉल्व कर लेना है। अब इसी का एक और क्वेश्चन मैं करवाने लगी हूँ। फाइल ओपन, डाटा पे जाके पेयर्ड सैंपल की फाइल मैं ले लेती हूँ। इसमें देखो अब दिए हैं प्री एडवर्टीजमेंट सेल्स और पोस्ट एडवर्टीजमेंट सेल्स दी हुई हैं और प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग स्कोर्स दिए हैं। कितनी कंपनीज के दिए हुए हैं? 30। ठीक हो गया? अब आपने
दो टी टेस्ट लगाने हैं। एक में टेस्ट करना है whether the sales before the advertisement and after the advertisement are significantly different or not, और दूसरे में आपने टेस्ट करना है whether the scores before training and after training are significant or not. Simply compare means इसमें जाके paired sample t test, ठीक है। paired sample t test में जाके sales before advertisement, then sales after advertisement, यहाँ पे प्री ट्रेनिंग स्कोर और यहाँ पे पोस्ट ट्रेनिंग स्कोर। क्लियर होगी बात? जी ठीक है। और यहाँ पे जाके ओके, अब आपके दो रिजल्ट्स आ गए, दो आ गए ना, इकट्ठे लग गए दो। जी टी टेस्ट दो लगे हैं अलग अलग, पर इकट्ठे लग गए, ठीक है। अब आप मुझे इंटरप्रिटेशंस बताओगे दोनों की, ये आपके सामने रिजल्ट्स पड़े हैं, आप बताओ। पहले फर्स्ट की बताओ। बताओ। मैम नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगा किस केस में? दोनों केस में। बिल्कुल ठीक, जी क्योंकि सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से बड़ा है। छोटा है। जी जी छोटा है। सेल्स बिफोर एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज प्री ट्रेनिंग स्कोर एंड पोस्ट ट्रेनिंग स्कोर। दोनों में जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जी मैम। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है इतना सबको? जी जी मैम। ओके मैम। बेटा यहाँ तक अगर यहाँ भी मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब एक ही n-1 ही होगा ना? n-1 30 जी -1 जी ओके ओके जी मैम जी। यहाँ तक ठीक अगर है। किसी को नहीं क्लियर है, कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आगे मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देने लगी हूँ अभी। ओके यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। मैडम कोई डाउट तो नहीं है? जी मैम। चलो अब एक आप करो, स्ट्रेस लेवल, ठीक है। इंटरवल डाटा पे आपको दिया, आपने कुछ स्कोर्स लेने ऑफ 30 असिस्टेंट प्रोफेसर्स बिफोर COVID-19 and after COVID-19, whether it is significantly different or not. स्कोर्स अपने आप ले लो, डाटा एंटर करो, डाटा एंटर करके सॉल्व करो और फिर मुझे रिजल्ट्स बताओ। आपके खुले हैं स्पेसेस? नहीं मैडम मैं तो मोबाइल से कर रही हूँ, इसके लिए नहीं हो अच्छा, पाएगा। मोबाइल से कर रहे हैं, ओके जी, ओके ओके ओके। आज नहीं हो पाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर आप इसको जो है सॉल्व कर लेना, जी जी ठीक है। मैम जी और जी ये आपका जो है टी टेस्ट कंप्लीट है अभी तक का जो है। टी जी टेस्ट हम मेनली यूज कहाँ पे करते हैं? टी टेस्ट हम यूज करते हैं अगर आपके सैंपल जो है वो स्मॉल सैंपल हो या लार्ज भी हो, तो हम टी टेस्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली SPSS पे एक ही आपका जो उसका पैटर्न होता है टी टेस्ट का, जेड अलग से नहीं होता है। तो मीन का कंपैरिजन करना इन केस ऑफ 1 सैंपल और इन केस ऑफ 2 सैंपल्स। 2 सैंपल्स के केस में हम देखते हैं, एक केस लेते हैं जब आपके जो है पेयर्ड हैं सैंपल्स, और एक केस लेते हैं जब आपके नॉन पेयर्ड हैं सैंपल्स, ओके ठीक है। तो दोनों को मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया, डिटेल्स बता दी हैं। तो ये मेन आपका जो है आज का टॉपिक कंप्लीट है। आज थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। जी मैम जी। Ma'am, हाँ जी। I have a doubt. हाँ जी बोलिए। How can we define one sample is small or not? Okay, generally we take if n is less than 30, then sample is small. 30. Okay. If n is greater than 30, then sample is large. ये देखिए, Okay. then sample size Okay. is 30 or less, and population standard deviation is known, तब हम लगाते हैं theoretically t test। जब n 30 से ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो है, एक मिनट, जब n 30 से ज़्यादा हो जाता है ना ये, तो हमारा Okay, जो okay. सैंपल साइज है ना वो कन्वर्ट हो जाता है
ओके ओके मतलब वो Z टेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। पर क्योंकि ओके SPSS में कोई Z टेस्ट अलग से नहीं होता, तो हम जो है स्मॉल सैंपल T टेस्ट ही लगाते हैं, ठीक है। Okay. और एक मजेदार बात बताऊँ आपको, ये T टेस्ट जो है इसको स्टूडेंट्स T टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको स्टूडेंट्स T टेस्ट? दिया इसको किसने है? प्रोफेसर गोसेट ने, WS गोसेट ने, जी। ठीक है। क्योंकि उन्होंने जब टेस्ट दिया था ना, तो उन्होंने अपने जितना भी वो लिखते थे, अपना जो उनका रिसर्च का काम था, वो अपने एक पेन नेम के अंडर लिखते थे। उस पेन नेम था स्टूडेंट, ओके ओके तो इसलिए इसको स्टूडेंट्स T टेस्ट कहते हैं। इसको Okay, गोसेट T अच्छा। टेस्ट कोई नहीं कहता है, स्टूडेंट्स T टेस्ट कहते हैं इसको। Friends test, okay, pen name. हाँ, क्योंकि उन्होंने जब दिया तो वो जितना भी जो लिखते थे, जो उनका लिखा हुआ जितना भी है, वो अंडर द नेम स्टूडेंट आया हुआ है, तो इसलिए इसको जो है स्टूडेंट्स T टेस्ट कहते हैं। Didn't know ओके that. ओके हाँ जी, क्लियर है? जी ओके मैम। अब आगे आज क्या करना है फर्दर? कोई पिछले में डाउट्स हैं तो वो पूछ लो। मैम, मेरा एक वो है कंफ्यूजन है कि सपोज मेरा 8 स्टेट्स है, सपोज 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सेंसस का डाटा है, सेकेंडरी डेटा। ओके, तो उसमें सपोज 8 स्टेट्स का मेरे पास डाटा है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी number of households accessing electricity, then suppose number of households without electricity, ऐसे कुछ डाटा है। तो वो डाटा को अगर हमको कोई ऐसा टेस्टिंग वगैरह करना है, मतलब कोई भी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एक्सेप्ट, मतलब हम देखना चाहते हैं कि उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं, सपोज रूरल अर्बन, रूरल में सपोज कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, अर्बन में कितना कंजम्पशन हो रहा है, तो वो देखने के लिए मैं क्या टेस्ट लगाने से मतलब अच्छा रहेगा मैडम? हाँ देखो, जब आपका इस तरह से डाटा दिया है कि रूरल और अर्बन का डाटा दिया हुआ है, और जो आपका टेस्ट है उस केस में टेस्ट आप लगा सकते हैं, जैसे रूरल और अर्बन, देखो नॉन मीट्रिक वेरिएबल हो गया ना, आप यही टेस्ट करना चाहते हैं ना, वेदर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या हाउस होल्ड्स विद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, यही ऑब्जेक्टिव है ना आपका। जी जी मैम। तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो स्केल डाटा है, जी जी ठीक है। और जो आपका वेरिएबल हो गया वो कैटेगरिकल हो गया, इंडिपेंडेंट रूरल और अर्बन, जी, ठीक है। कैटेगरी हो गया, हाँ। कैटेगरिकल हो गया ना, तो जी। टी टेस्ट इजीली लग जाएगा। ओके, ठीक ठीक ठीक। Ma'am, हाँ जी, like we have a state, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट का एग्जांपल ले, it has been formed in 2000, तो उसके बनने के पहले छत्तीसगढ़ जो रीजन है, उसके बनने के स्टेट बनने के पहले जो रीजन है छत्तीसगढ़ का, उसके 15 इयर्स की डेटा ले लें, बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही रीजन जो स्टेट में चेंज हुआ है, वो उसका बनने के बाद का 15 साल का डेटा ले लें। तो वी हैव 2 सीरीज विद अस, तो उनके अगर हमको बेसिकली हाँ मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप हमको डिफरेंस उनका निकालना चाह रहे हैं। अगर उस रीजन का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उसके बनने के स्टेट बनने के बाद उस रीजन का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर 2 सीरीज मिल बेसिकली ना जाएंगे। ये टाइम सीरीज डाटा है। ओके, टाइम सीरीज डेटा, तो इस पे मैम टेस्ट तो लगेगा ही। हाँ, टी टेस्ट सच जो है इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता इस पे आप जो है Okay. स्ट्रक्चरल ब्रेक के साथ चलते हो, इकोनोमेट्रिक्स का ये पार्ट है, स्ट्रक्चरल ब्रेक लगा के ना फिर आप उसकी जो है डमी वेरिएबल लेके फिर फर्दर टेस्टिंग ओके 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 मैम, स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। और मैम डमी जैसे एक वेरिएबल लेके पर्सन, ना उससे हाइपोथेसिस हाँ। टेस्टिंग करते हैं। ओके ओके ओके, एंड मैम जैसे एक पेशेंट है, शुगर पेशेंट, उसके खाने के पहले का टेस्ट लिया जाए, ब्लड सैंपल लेके टेस्ट लिया जाए, और खाने के बाद के सैंपल्स लिया जाए, उसमें कोई Paired. कौन सा टेस्ट होगा? पेड टी टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। क्योंकि आपने बिफोर लिया, एक ही पर्सन का डाटा लिया ना, हाँ, सेम पर्सन, अलग अलग टाइम पे ले लिया, जैसे आज लिया फिर रीडिंग 2 दिन बाद की है या 15 दिन बाद की है या फिर शाम की है, तो वो पेयर टी टेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक जैसे यू। बीपी का अगर आप ले लेते हो कि ब्लड हाँ, प्रेशर जो BP है बिफोर
मतलब मेडिसिन या आफ्टर मेडिसिन, हम्म, ठीक है, तो वो आपका टी टेस्ट पेयर। थैंक यू मैम। हाँ जी, और कोई डाउट? हाँ जी, जितना पुराने लेक्चर्स किए हैं उसमें देख लीजिए अगर कोई डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है। ओके मैम। कोई अगर डिफिकल्टी है पुराने डेटा में या पुराना जितना हमने किया है तो वो भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज शुड बी वाइंड अप हियर। ओके मैडम। Okay, ma'am. प्रदीप Okay, सर ma'am. से एक बार बात कर लेते हैं। प्रदीप सर हाँ हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, मैं सुन रहा ओके, हूँ। ठीक है सर, ओके जी, ओके, गुड बाय, एंड वी विल मीट ऑन 31st फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। Yes, Okay. 31st Yes, ma'am. at 3. ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। Okay, thank you, ma'am. Thank you, madam. थैंक यू मैम। Thank you so much.